Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing chapter first. Hello students, hope you all are doing good. Today we are doing a chapter named Pre-Mughal period. Human life is usually classified into three phases: childhood, youth and adult life. In the same way, history is also divided into three periods: the ancient, the medieval and the modern. पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, और मेडिवल पीरियड जो है वो एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री के बीच का लिंक है, और मॉडर्न हिस्ट्री क्या है ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं. ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि why we consider 8th century as the starting of the new medieval period in India. It is because after the death of Harshvardhan there were lot of changes that took place in the social, political and economical spectrum of Indian history. हर्षवर्धन की डेथ के बाद क्या होता है, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल तीनों चीज़ों में बहुत तेज़ी से इंडियन हिस्ट्री में चेंज आता है. एज वी सो डिफरेंट चेंजेस दैट टुक प्लेस इन 18th सेंचुरी वॉज द ब्रेकअप ऑफ मुगल एम्पायर. और 18th सेंचुरी में जो ये चेंज आया ये क्या था, ये वास्तव में मुगल एम्पायर का ब्रेकअप था. द डिक्लाइन ऑफ मराठा पावर एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया. कैसे मराठा पावर ख़त्म हो गई और कैसे ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आया. हेंस इट मार्क द एंड ऑफ मेडिवल पीरियड इन इंडिया. जब मराठा पावर ख़त्म हो गई और ब्रिटिश रूल शुरू हो गया, उस पीरियड को क्या नाम दिया गया, एंड ऑफ मेडिवल पीरियड इन इंडिया. और 18th सेंचुरी से जब ब्रिटिशर्स ने रूल शुरू किया, दैट इज़ द मॉडर्न इंडिया. द चेंजेस इन द मेडिवल पीरियड हैड इन्फ्लुएंस्ड रिलीजियस बिलीव्स, some of the languages and administration to some extent. That is why the ancient period in India lasted till around 8th century AD. The medieval period lasted roughly from 8th to 18th century AD. The main sources of information in the medieval period were called literary and archaeological sources. They give us more information about the medieval period in comparison to ancient period. जो हमें archaeological sources मिले हैं, literary sources मिले हैं, उनसे हमें medieval period के बारे में पता लगता है. And no more links were found between the north and south India during the ancient period. नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में क्या लिंक था, उसकी ज़्यादा हमें उनके लिंक का पता नहीं लगा है. देयर वर ग्रोइंग कम्युनिकेशन बिटवीन द टू ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. नॉर्थ और साउथ इंडिया में मेडिवल पीरियड में आपस में कम्युनिकेशन रहती थी, एंड इंडिया कम्युनिकेटेड विद अरब, तुर्क, अफगान्स एंड मंगोल्स. और जो इंडिया है वो अरब्स, तुर्क्स, अफगान्स एंड मंगोल्स के साथ भी आना जाना था. नाउ मोर टू नो, Turks, Arabs, Afghans and Mughals made their ways to India during medieval period. जो तुर्क, अरब, अफगान एंड मुग़ल इंडिया में आए, वो कैसे आए, कौन से पीरियड में आए इंडिया में, मेडिवल पीरियड में. The events and the established trend varied a lot from the ancient period. During the medieval period of Indian history, these trends kept on changing toward the starting of the 13th century and the later medieval period. Now, the early and the later medieval period. अब मेडिवल पीरियड जब स्टार्ट हुआ, उसके बाद मेडिवल पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया: अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड. A huge number of tribes visited from Central and South Asia in the early medieval period. अर्ली मेडिवल पीरियड में बहुत सारी ट्राइब्स आई सेंट्रल एंड साउथ एशिया से इंडिया में. एज earlier migrant or invaders, they continued with their trends. These invaders followed various kinds of historical trends during the later medieval period. The Arabs had conquered Sindh in 712 AD. AD means Anno Domini, used after a date which signifies that it shows the specified number of years after क्राइस्ट बर्थ. एंड आफ्टर क्राइस्ट बर्थ के बाद का जो टाइम पीरियड है उसको AD के नाम से डिनोट किया जाता है. इन द आफ्टरमैथ ऑफ
this victory, several Arab invaders, merchants and scholars started to visit India both from the land route and the sea route and settled on the Malabar coast. और फिर इसके बाद बहुत सारे अरब इन्वेडर्स आए, मर्चेंट आए, स्कॉलर्स आए इंडिया में विजिट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, और फिर यहीं पर मालाबार कोस्ट पर सेटल हो गए. नाउ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. In ancient times, India was known by various names, जैसे कि Aryas had settled in the northwest Ganga Yamuna Doab region. The land was said to be आर्यवर्ता. जब आर्यन इंडिया में आए गंगा यमुना दोब रीजन में, तो उस लैंड को क्या नाम दिया गया? आर्यवर्ता. The land was known as Sapta Sindhu when they had settled in Punjab region. जब वो पंजाब रीजन में सेटल हुए तो उस लैंड को नाम दिया गया सप्ता सिंधु. It signifies the land of 7 rivers. They were Indus and its 6 tributaries. जिसका नाम है सप्ता सिंधु का इंडस रिवर और उसकी 7 सहायक नदियाँ. And they were Indus and its 6 tributaries. इंडस रिवर और उसकी 6 सहायक नदियाँ मिलकर सप्ता सिंधु के नाम से उस लैंड को बोला गया. सिंधु इज द संस्कृत नेम ऑफ इंडस. व्हेन आर्यन सेटल्ड एट गंगा वैली द लैंड वाज कॉल्ड भारत. और जब आर्यन गंगा वैली में रहे तो लैंड का क्या नाम रखा गया? उस लैंड का, उस एरिया का नाम रखा गया भारत. इस तरीके से द रीजन्स कवर्ड अंडर दिस वर मॉडर्न पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान. भारत इज ऑल्सो अ संस्कृत वर्ड. इट्स origin date back to Vedas. Certain scholars attached it to ruling tribe in the area where Mahabharata took shape. This name referred to the land of the whole subcontinent. When Persian and Arabian speaking Muslim arrived, the word Hindu was used in the form of variations of Sindhu. Stan term was attached to Hindu. हिंदू को सिंधु बोलने लगे वो, और इस तरीके से सिंधु को हिंदुस्तान के नाम से जाना गया. लैंड ऑफ हिंदूज, लाइक स्थान, इट इज इन संस्कृत, हैंस इट वाज कॉल्ड हिंदुस्तान, और द वर्ड हिंदुस्तान सिग्निफाइज टू द लैंड ऑफ हिंदूज. इस तरीके से हिंदुस्तान का नाम पड़ा, लैंड ऑफ हिंदूज. ओके, नाउ सोर्सेज ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेडिवियल पीरियड. कैसे हमें इंडियन मेडिवियल पीरियड के बारे में पता लगता है? फर्स्ट टाइप के सोर्सेज हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में जैसे कि कॉइन्स, मॉन्यूमेंट, इंस्क्रिप्शन और एनी मटेरियल एविडेंस एक्सक्वेटेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट और अदर साइंटिस्ट. जो भी अर्थ को डग करके, एक्सकवेशन करके, खोज करके कॉइन, मॉन्यूमेंट, इंस्क्रिप्शंस ये मिले हैं हमें, वो क्या है? आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाते हैं. बिल्डिंग्स एंड अदर मॉन्यूमेंट्स सच एज फोर्ट्स एंड religious structures built by the rulers are the most significant archaeological sources of medieval period. और जो उस टाइम के रूलर्स थे उन्होंने अलग अलग मॉन्यूमेंट बनाए थे, रिलीजियस स्ट्रक्चर बनाए, वो भी उस टाइम के इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं. एंड द इंस्क्रिप्शन ऑन द सरफेस ऑफ स्टोन्स और रॉक्स आर द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेज टू स्टडी हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड. और जो रॉक के ऊपर या स्टोन के ऊपर इंस्क्रिप्शन की गई वो भी उस टाइम के इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं. इट इज़ वेल नोन दैट ईच रूलर ऑफ किंगडम माइंटेड इट्स ऑन कॉइन्स. और पहले जो पावरफुल किंगडम थे उनके हर एक किंग के अपने अपने कॉइन्स थे. नाउ मोर टू नो अबाउट. In the past, when the paper was not invented, were writing on clay plate and booked it for long lasting. In this manner, people preserved information. जब पहले पेपर नहीं होते थे तो लोग कैसे लिखते थे? क्ले प्लेट पर लिखते थे और उसको सुखाकर बहुत लंबे टाइम तक उसको सेव रखते थे, सिक्योर रखते थे. एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ सोर्सेज आर इंस्क्रिप्शंस.
रिटन फॉर्म में इंस्क्रिप्शन आते हैं आपके। इंस्क्रिप्शन जैसे एग्जांपल दिया है आपको, क्ले के ऊपर या किसी भी पत्थर के ऊपर, किसी भी पिलर के ऊपर, प्लेट के ऊपर कुछ भी लिख दिया जाता था। जो भी राजा के उपदेश होते थे या फेमस सेइंग होती थी वो इंस्क्रिप्ट कर दिया जाता था, वो आपके फेमस सोर्सेज ऑफ इंस्क्रिप्शन में आता है। जैसे इंस्क्रिप्शन आर फाउंड इन संस्कृत, तमिल एंड मैनी अदर रीजनल लैंग्वेजेस। द टेक्स्ट ऑन दिस इंस्क्रिप्शन मेंशन द फॉलोइंग अबाउट लिटरेसी इन साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, कि कितने पढ़े लिखे लोग थे साउथ इंडिया में और साउथ एशियन कंट्रीज में। एंड अबाउट द किंग्स एंड इकोनॉमिक कंडीशन सच एज ट्रेड एंड कॉमर्स। उस टाइम राजा कौन था, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी ट्रेड एंड कॉमर्स की। अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन, कौन से धर्म को माना जाता था, कौन से धर्म को महत्व दिया जाता था। कल्चर डेवलपमेंट, जैसे कि ट्रेडर्स लिव्ड इन मालाबार कोस्ट वर तमिल स्पीकिंग पीपल। There was good economic prosperity in South India. These inscriptions also mention that trade had expanded and prosperous between 10th to 13th century, कि 10वीं से 13वीं सेंचुरी तक ट्रेड बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ। इन इंस्क्रिप्शन से ही ये हमें पता लगता है। पॉलिटिकल रिलेशनशिप between the merchant association, for example Chola kings trade with Southeast Asian countries, exportation of textiles in huge quantities to Middle East and Southeast countries. Next is social and economic life of people. उस टाइम के लोगों की सामाजिक और इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर मस्टर्ड अंडर द रूलर ऑफ मेडिवियल पीरियड, कि जो मेडिवियल पीरियड के रूलर थे उनके अंडर आर्ट एंड आर्किटेक्चर उस टाइम कैसी थी। नेक्स्ट सोर्सेज हैं मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स, baked bricks, stones and other hard material were used to build the buildings in the medieval period. ईंटें, पक्की ईंटें, स्टोन, पत्थरों का या हार्ड मटेरियल का यूज़ किया जाता था बिल्ड करने में। जो भी बिल्डिंग बनाते थे उनमें यूज़ किया जाता था। Temples of North and South India were constructed in this period. The Islamic ruler gave a new element in constructing architecture with the construction of mosques and other structures. इस्लामिक जो रूलर थे उन्होंने एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर को नया मोड़ दिया, एक इस्लामिक टच दिया, मॉस्क्यू बनाई गई, मस्जिद बनाई गई। मैक्सिमम बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड सर्वाइव इवन टुडे ऑल्सो, दो some have been either destroyed by invaders or ruined by natural calamities such as earthquake and flood. कुछ जो मॉस्क्यू बनाई गई थी, जो उस टाइम की बिल्डिंग थी, वो अभी तक सर्वाइव करती हैं और कुछ माना जाता है कि किसी नेचुरल क्लाइमेटी में टूट गई होंगी या किसी इन्वेडर ने तोड़ दिया होगा। जैसे आप एग्जांपल देखोगे कैलाश टेम्पल है और सिकंदर टॉम है, ये अभी भी आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज कॉइन्स। मैक्सिमम किंगडम्स हैड देयर ओन कॉइन्स इन मेडिवियल पीरियड। कॉइन से क्या पता लगता है, किंग का पता लगता है। इन पर एक साइड किंग की पिक्चर होती है, किंग का पोर्ट्रेट होता है और दूसरी साइड एक छोटा सा स्लोगन होता है। और जो ये कॉइन है ये मेटल से बने होते हैं, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर। कॉइन्स जो है वो हमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है उस टाइम के रीजन की प्रोस्पेरिटी कैसी थी, उस टाइम का जो राजा था वो कितना स्ट्रॉन्ग था। द कॉइनेज वी कॉल रुपीज टुडे वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह सूरी। जो कॉइन सिस्टम हम अभी भी यूज़ करते हैं वो किसने इन्वेंट किया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था? शेर शाह सूरी, जो कि एक मुगल रूलर था। नाउ लिटरेरी सोर्सेज, ये तो हमने बात की आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की। अब जो हमें रिटन फॉर्म ऑफ सोर्सेज मिले हैं उनमें क्या लिखा है? All the languages spoken at present had come into being at different periods of time in the medieval age. Several scholars came with Islamic rulers or visited India, such as Ibn Battuta. Some of the writers used to live in the court of ruler. बहुत सारे उस टाइम स्कॉलर्स आए, जैसे कि इंडिया में एक
इब्न बतूता स्कॉलर आए जिन्होंने बहुत कुछ उस टाइम के राजा के बारे में लिखा है। और सम ऑफ द राइटर्स यूज टू लिव इन द कोर्ट्स ऑफ रूलर, कुछ जो राइटर थे वो राजा के कोर्ट में, राजा के दरबार में ही रहते थे। द राइटर ऑफ ललिता विग्रहराजा नाटक and the Somved was the court poet of Chauhan ruler, and Chandbardai, who wrote in praise of Prithviraj Chauhan in this Prithviraj Raso. Foreign scholar Al-Biruni came along Muhammad Ghazni to India, और जैसे बहुत फेमस फॉरेन स्कॉलर है अल-बिरूनी, वो मोहम्मद गजनी के साथ इंडिया में आए। और चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज चौहान के कवि थे वो उनके दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में पृथ्वीराज रासो में लिखा है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। Some events occurred both outside and inside the boundaries of India. India has influenced these events and trends in medieval period. Here, India came in contact with outside world. There were two main factors. Trade was one of the significant factors and another was arrival of Arabs to India. इस टाइम में दो मेजर चेंजेस हुए, एक तो ट्रेड was one of the significant factor और second कौन आए इंडिया में, अरब इस टाइम आए। Now next is rise of Islam. The Islam was founded by Muhammad ibn Abdullah. किसने फाइंड आउट किया था ये इस्लाम धर्म? मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। उसके बाद उसके प्रॉफिट मोहम्मद आए। He was born in Quraysh tribe of Makkah in 570 AD. He had fled to Makkah in 622 AD and established the new religion, that is Islam. The year 622 is known as Hijra in Islam and also is the first years of Islamic calendar. Islamic was spread nook and corner across the world after the death of Prophet Muhammad. His successors were known as कैलिफ्स। तो उसके बाद उनकी डेथ के बाद पूरे कोने कोने तक इस्लाम धर्म फैल गया और इसके बाद जो इनके सक्सेसर आए प्रॉफिट मोहम्मद के, उनको कैलिफस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज लिटरेरी सोर्सेज, प्रॉब्लम ऑफ रिटेलिंग। लिटरेरी सोर्सेज से क्या हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है? Here is an expert from Journal of Indian Philosophy about certain difficulties faced by writers for interpreting the Tibetan chronicle of early medieval period. Tibetan life stories were of the spiritual adepts or Indian siddhas, stories which brim with explanation of much meaning for historical information in the past decade of modern scholarship. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस की हैं जो भी राइटर्स हैं उन्होंने, लाइक दे कॉन्क्यूर्ड जॉर्डन, टर्की, पैलेस्टाइन, साइरिया, लेबनन, इराक, इजिप्ट एंड सिंध. Abbasid Empire was the most powerful empire of that civilization. He came to power as Selfish at Caliphus at Baghdad in the mind of the 18th century. Islam spread rapidly in these countries. The Arabs were keen merchants and they took initiative to encourage trade and emerged as the most enterprising and seafarers in the world. It also led to the promotion of art, literature and architecture. Arabs were divided into several tribe communities before the establishment of Islam. इस्लाम धर्म के इस्टेब्लिशमेंट होने से पहले जो अरब थे उनको अलग अलग कम्युनिटी में डिवाइड किया गया. They emerged as a united force and मंगोल्स ऑल्सो चेंज टू इस्लाम. यूनाइटेड फोर्स में वो चेंज हो गए और जो कुछ लोग थे मंगोल ऑल्सो चेंज टू, जो मंगोलियन थे वो भी इस्लाम धर्म में चेंज हो गए. इस्लाम ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इवेंट्स इन इंडिया. सम ऑफ द अरब ट्रेडर्स सेट अप देयर ट्रेडिंग सेंटर ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया. उमैद द सक्सेसर ऑफ द कैलिफस रूल्ड फ्रॉम Damascus. Abbasid ruled from Baghdad and spread Islamic faith throughout the world. और जो उसके बाद सक्सेसर आए, उमैद कैलिफस के जो सक्सेसर आए उन्होंने इस्लामिक धर्म को
स्प्रेड किया। नाउ नेक्स्ट इज इवेंट्स इन यूरोप। द पीरियड बिटवीन 15 टू 11th सेंचुरी का जो पीरियड था वो डार्क एजेस इन यूरोप के नाम से जाना जाता है। यूरोप वॉज एक्सट्रीमली बैकवर्ड इन ट्रेड एंड कॉमर्स। देयर वॉज इंस्टेबिलिटी, डिसऑर्डर एंड कॉन्सेंट वार्स इन यूरोप। इकट्ठा बहुत सारी वॉर होती रहती थी उस टाइम पर यूरोप में, और इनस्टेबल यूरोप था, डिसऑर्डर था उस टाइम बहुत ज़्यादा। द सिटी ऑफ रोम वॉज अटैक्ड बाय द हुन्स, the Goths and the Vandals. Vandal refer to a person who deliberately damage or destroys private or public property, जो जानबूझ के पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते थे। द कॉमन मैन वॉज लिविंग अ स्ट्रेस लाइफ, जो कॉमन मैन थे वो स्ट्रेस की लाइफ जी रहे थे। गोथ इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ जर्मन पीपल दैट इन्वाइटेड द रोमन एम्पायर बिटवीन द 3rd and 5th century. Now more to know. Porcelains and tea, which have become a part of every household all over the world, are the gift of China. The tea was brought to India by the British. जो टी आजकल घरों में, सबके घरों में फेवरेट है, ये कौन लाए थे इंडिया में? ब्रिटिशर्स लाए थे। ओके, नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम क्रिश्चियनिटी जो एक रिलीजन है वो भी शुरू हो गया था, और these development in Europe affected the entire world. India was affected by the trade and crusades, holy wars of European countries. India भी बहुत ज़्यादा affected था इन traders से और इन holy wars से। Now come to the next, that is the crusades. Crusades कौन थे? In the 11th century, the holy wars started in 1096 AD in the name of Christendom, and Byzantine Empire was attacked by the Seljuk Turk. It was the time when Christian pilgrims from Europe were tortured by the cruel and harsh Seljuk, and the Byzantine Emperor Alexius sought help from Pope Urban II in 1095. They were sanctioned by the Pope and were religious in nature. Their target was Jerusalem, the holy land of Christians from Muslim control. उनका टारगेट क्या था? उनका टारगेट था क्रिश्चियंस की लैंड को मुस्लिम कंट्रोल से बचाना। These military campaigns could have succeeded in their target, but brought the Arab and the European world much closer. इन्होंने क्या किया? दीज मिलिट्री कैंपियंस ने अपनी लैंड तो बचा ली, जो उनका टारगेट था वो तो सक्सेस कर लिया, लेकिन अरब एंड यूरोपियन को बहुत क्लोज ला दिया। ट्रेड एक्सपेंडेड एंड इट बोट ह्यूज वेल्थ टू इटालियन एंड अदर यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर। मैनी पीपल टू डाइड इन दीज वॉर्स। नेक्स्ट इज रिनेसेंस। With the growth of Renaissance, the Middle Ages in Europe ended. It was a type of movements which saw the growth and revival of art, architecture, learning and literature. The European Renaissance affected events globally comprising of India. Several scholars, writers, scientists, poets and others were encouraged by it. You will learn more about it in the next chapter. Next is growth of feudalism. A system called feudalism arose in Europe in this period. The term feudalism has been taken from the Latin word feudism, referred to पीस ऑफ लैंड विच इज़ ग्रांटेड इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। फ्यूडलिज्म का क्या मतलब है? किसी को किसी से काम लेकर उसको बदले में लैंड दे देना। जो किंग है वो अपनी लैंड जो है नोबल मैन को डिस्ट्रीब्यूट करते रहते थे। नोबल्स जिनको फ्यूडल लॉर्ड्स कहते थे, बिकॉज किंग जो है वो उनके ऊपर डिपेंड थे because for their soldiers, and he could not have maintained a permanent army. The lords divided these lands to smaller landlords known as vassals or jagirdar, and for cultivation to farmer. Lands became hereditary with the short span of time, and these emerged a land owning class
नोन एज लैंड फॉर्म, और वो लैंड देते थे किसी सर्विस के बदले, और इस तरीके से धीरे धीरे जिनकी लैंड होती थी उनको जागीरदार का नाम दिया जाने लगा। फिर ये लैंड का जो सिलसिला था ये हेरिडिटरी होता गया, और जिसके पास खुद के खेत होते थे एग्रीकल्चर के लिए उनको लैंडलॉर्ड का नाम दिया गया। द लैंडलॉर्ड्स एम्प्लॉयड लेबरर टू कल्टिवेट इट, और वो क्या करते थे, वो अलग अलग लेबर्स को हायर करते थे कल्टीवेशन के लिए। एंड द लैंडलॉर्ड्स एम्प्लॉयड लेबर टू कल्टिवेट इट, दीज लेबर्स वर नोन एज सर्व्स इन यूरोप, और इन लेबर को यूरोप में क्या कहा जाता था, सर्व। दिस सिचुएशन वॉज मिसरेबल, बहुत दयनीय सिचुएशन थी ये, क्योंकि दे नीदर इम्प्रूव द सिचुएशन नोर गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ग्रिस्प ऑफ लैंडलॉर्ड, ना ही वो इनके चुंगल से निकल पा रहे थे और ना ही वो इतना टॉर्चर सहन करके काम कर पा रहे थे। दिस सिचुएशन हैड बीन प्रिवेडिंग इन इंडिया जस्ट फ्यू डिकेड्स बैक, बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस मेजर सेक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन हैड रिमेन्ड पुअर। इसी कारण, इसी प्रथा के कारण जो अभी तक हमारी जो कुछ जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो अभी भी पुअर है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट चाइना। चाइनीज सोसाइटी एंड कल्चर बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ 8th से 9th सेंचुरी के बीच में अंडर टैंग रूल। Chinese merchants had immensely improved and increased their trading nexus with India. The trade was carried through India via land route, the Silk route and the sea route. और इंडिया और चाइना के बीच में बहुत अच्छे ट्रेड रिलेशन बने और लैंड रूट, सिल्क रूट और सी रूट के द्वारा आदान प्रदान होता था। With trade, Buddhism and Islamic religions also reached China. और इसी व्यापार में ट्रेड के दौरान बुद्धिस्ट और इस्लामिक रीजन चाइना में पहुंचा। अ न्यू वेल्दी ग्रुप ऑफ चाइनीज डेवलप्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रेड नोन एज मैड्रेन्स, दे डोमिनेट द चाइनीज सोसाइटी इवन टुडे। और एक नया ग्रुप सामने आया जो अभी भी चाइनीज सोसाइटी को डोमिनेट करता है। नेक्स्ट इज अबाउट मुस्लिम ओरिजिन। One of the most significant events in Indian history was the setup of Mughal Empire. मुगल एम्पायर से ही मुस्लिम ओरिजिन की शुरुआत हुई। Timur and Babur both were Mongols. Mongols were united under the leadership of Genghis Khan, whose second name was Genghis Khan. मुगल जो थे तिमूर एंड बाबर दोनों ही मंगोल्स थे और जो मंगोल थे वो चंगेज़ खान के अंडर थे। एंड चंगेज़ खान इन्वेडेड चाइना इन 1217. Most of the part of northern China was under the control of Mongols. Hereafter, Genghis Khan was moved to westward and swept over the entire Central Asia and became the master of Central Asia in 1225. चाइना को कंक्यूर करने के बाद पूरे सेंट्रल एशिया को चंगेज़ खान ने कब्जा लिया और चंगेज़ खान की 1277 में डेथ हो जाती है। अंडर द रीजन ऑफ हिज ग्रैंडसन Kublai Khan, a Venetian merchant, Marco Polo visited to China with his father and uncle. Marco Polo चाइना विजिट करते हैं अपने फादर और अंकल के साथ। कुबलाई खान who sent Marco Polo to several countries on diplomatic missions incorporating Persia and India, he was impressed with all that he saw and left behind a remarkable account. काबुली खान जिसने मार्को पोलो को भेजा था अलग अलग कंट्रीज़ में, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ अलग अलग जगह की क्वालिटीज़ देखकर। एंड द मंगोल सेट अप देयर पॉलिटिकल अथॉरिटी ओवर अ वास्ट एरिया विच प्रोवाइडेड देम अ फ्लोरिशिंग ट्रेड। और जो मंगोल ने बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जिनको उन्हें ट्रेड में भी फ्लोरिश करने में हेल्प हुआ। They had also affected the events in Central Asia. Islamic rulers in Central Asia captured Constantinople in 1453 और इस तरीके से इस्लामिक रूलर्स सेंट्रल एशिया में जो थे उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लिया 1453 में। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर्स।
एम्पायर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, साम्राज्य किंगडम कैसे बने. सेवरल स्मॉल किंगडम्स वर सेट अप in the North India. These kingdoms had initiated a violent warfare among themselves. Still, however, some of the small kingdoms, such as those of Palas of Bengal and Cholas of South India, lasted for 4 centuries. छोटे छोटे बहुत सारे साम्राज्य बने और अलग अलग एम्पायर ने अपनी अपनी जगह ली और चोलास ने और बहुत टाइम तक रूल किया. बट दीज किंगडम्स वर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद देयर नेबर्स. पर अपने नेबर्स के साथ ये फाइटिंग करते रहते थे कि अब उन दूसरों की प्लेस को कॉन्क्यूर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. अलाउद्दीन खिलजी सक्सीड इन एस्टैब्लिशिंग अ वास्ट एम्पायर, बट इट वर द मुगल एम्परर इन द 16th and 17th century when they succeed in establishing empire across the India. जो अलाउद्दीन खिलजी था वो बहुत सक्सेसफुल हुआ था अपना एक बहुत बड़ा एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में, लेकिन 16th and 17th सेंचुरी में मुगल एम्परर्स ने उस साम्राज्य को, उस एम्पायर को ख़त्म कर दिया और अपना इंडिया में एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया. मोर टू नो अबाउट द मुगल एम्परर शाहजहां constructed the Taj Mahal in the sweet memory of his beloved wife Mumtaz Mahal. More than 20,000 workers constructed it. It took 20 years to finish it at the cost of 40 million rupees. 40 million rupees के साथ 20 सालों में 20,000 वर्कर्स ने ताजमहल को बनाया, जो कि एक मुगल एम्परर शाहजहां ने अपनी वाइफ की याद में बनाया था, मुमताज महल की याद में. ओके, नाउ द ग्रोथ ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड द geography, chemistry, optics and medicine took shape in the invaluable account in this century. इस टाइम में एस्ट्रोनॉमी, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, ऑप्टिक्स और मेडिसिन ने अलग अलग शेप ले ली थी, इसमें भी स्टडी शुरू हो गई थी. द अरब्स वर सेड टू द वर्ल्ड लीडर्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, और अरब को साइंस के फील्ड में वर्ल्ड लीडर कहा गया है. सेवरल लीडिंग लाइब्रेरीज एंड साइंटिफिक लेबोरेटरीज वर सेट अप इन अरब इन द स्टार्टिंग ऑफ 10th century. Now feature of medieval period. First is several historical monuments and temples were constructed in this period like Taj Mahal. बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इस पीरियड में कंस्ट्रक्ट हुए हैं, जैसे कि ताजमहल. द कास्ट सिस्टम बिकेम मोर टफ. द लैंग्वेजेस आर बीइंग स्पोकन एट प्रेजेंट डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. अब जो भाषाएं बोली जाती हैं और जो कास्ट सिस्टम है वो उस टाइम पर कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा था, और जो लैंग्वेजेस अब बोली जाती हैं, हम यूज़ करते हैं, वो मेडिवियल पीरियड में ही डेवलप हुई थी. The food and clothes are being eaten and worn at present became popular during the medieval period. जो फूड हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, वो मेडिवियल पीरियड में ही शुरू हुए थे. मेडिवियल पीरियड handed over India a multicultural legacy with the fusion of Hindu and Muslim culture. With this intermixture of religious communities, a composite culture has evolved and prospered in this period. मेडिवियल पीरियड में मुस्लिम कल्चर और हिंदू कल्चर जो है वो मिक्स हुआ और एक नया कल्चर आया. इंटरमिक्सचर ऑफ दीज कल्चर्स involved a new composite culture. Okay, now points to know. The period which lies in between the ancient and the modern period is said to be medieval period. पुराना पीरियड यानी एंशियंट और न्यू पीरियड, मॉडर्न पीरियड के बीच का जो पीरियड है उसको मेडिवियल पीरियड कहा गया. द मेडिवियल पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री हैज क्लासिफिकेशन अर्ली मेडिवियल एंड लेटर मेडिवियल. The Arabs had conquered Sindh in 712 AD. अरब्स ने सिंध रीजन पर कब कॉन्क्यूर किया था? 712 AD में. आर्यवर्त, भारत, हिंदुस्तान, ऑल आर नेम्स ऑफ इंडिया. ये सारे इंडिया के ही नाम हैं जो अकॉर्डिंग टू लैंड रखे गए थे. वी ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिवियल पीरियड फ्रॉम द न्यूमिनेस्टिक monuments, foreign travelers account, inscriptions, literature और plates of copper और stone etc.
मेडिवल पीरियड के बारे में हमें न्यूमिस्मेटिक्स यानी उस टाइम जो कॉइन्स थे, मॉन्यूमेंट थे, फॉरेन ट्रेवलर के अकाउंट हैं, इनसे हमें पता लगता है। The people who visited to India in the medieval period were the Arabs, Afghans and the Mughals. मेडिवल पीरियड में इंडिया में कौन कौन आए थे? अरब पीपल, अफगानी पीपल एंड मुगल्स। द अरब्स एंड द मुस्लिम स्कॉलर्स मेड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ग्रोथ ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर की ग्रोथ के लिए अलग अलग जो लोग आए, जैसे अरब हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। द अर्ली मेडिवल पीरियड शोज कमिंग ऑफ अ ह्यूज नंबर ऑफ ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ एशिया। अर्ली मेडिवल पीरियड में हमें पता लगा कि बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं वो सेंट्रल और साउथ एशिया से इंडिया में आई। द इंस्क्रिप्शन ऑन surfaces of stones or rocks are the most authentic sources to study history of this period. जो भी उस टाइम पे इंस्क्रिप्शंस मिली हैं उनसे हिस्ट्री के बारे में हमें पता लगता है। All the languages spoken at present had come into being at different periods of time on the medieval age. अब हम जो लैंग्वेज एट प्रेजेंट यूज़ करते हैं वो मेडिवियल एज में अलग अलग टाइम पर डेवलप हुई। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।